Hello student, this is class 4 and myself Nisha Singh going to teach you computer. This is your computer class. Now today I am going to start lesson number 1 and the lesson's name is input and output devices. As you already have learned about input and output devices, and in this lesson we are going to learn about IPO cycle, output devices, input devices and processing devices. Before starting the lesson, tell me what do you mean by co- computer? As you already learned about the definition of computer, computer is an electronic device that process information and provide output according to the given input. Whatever the inputs we given to the computer, it process the information and provide us a result in form of output. Okay. Now, the word computer originated from the Greek word compute. compute का originate किस वर्ड से originate हुआ है? compute, COMPUT ये वर्ड है, इससे इसका उद्भव हुआ है, जिसका मीन्स होता है विच मीन्स टू कैलकुलेट. कैलकुलेट मतलब क्या होता है? गणना करना. कंप्यूट मतलब क्या होता है? कैलकुलेट. कैलकुलेट. ओके, इसका मीन्स होता है कैलकुलेट करना. कंप्यूटर का मीन्स कैलकुलेट करना होता है. एंड द कंप्यूटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट. कंप्यूटर किस प्रिंसिपल, किस सिद्धांत में काम करता है? इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज IPO साइकिल, और इसे हम IPO साइकिल भी कहते हैं. नाउ IPO साइकिल. IPO cycle means input, process and output. Computer is an electronic machine that work in 3 steps. कंप्यूटर 3 स्टेप में काम करता है. फर्स्ट इज इट टेक द इनपुट. पहले हम इनपुट, कंप्यूटर इनपुट लेता है एंड प्रोसेस द इनपुट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन. और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसे वो प्रोसेस करता है CPU में, एंड इट गिव द रिज़ल्ट एज इनपुट. और जो हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड होता है उसे हम आउटपुट कहते हैं, नॉट इनपुट, आउटपुट. See here one example is given in with the help of our day-to-day life. And like if you want to make the juice, okay, take the input as a fruit. Okay, take the input, fruits take as the input. Okay, and then the juicer grinder is act as the processor of which grind the fruits in it. And after when the grinder grind the fruits, and here the juice come out as the result or as in a form of output. फ्रूट हम लेते हैं, उसे ग्राइंड करते हैं जो प्रोसेस के फॉर्म में होता है, और रिज़ल्ट के फॉर्म में वी गेट द जूस, और रिज़ल्ट आउटपुट के फॉर्म में हमें जूस मिलता है. Today we are going to know about the various part of the computer. What are the various part of the computer? The computer system has different part that work together. कंप्यूटर के कई पार्ट्स होते हैं जो एक साथ काम करते हैं. एंड दीज पार्ट्स आर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ठीक है, कंप्यूटर के 2 पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर. एक फिजिकल होता है और एक इंटरनल होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल. नाउ कम टू द नेक्स्ट. What do you mean by hardware? Physical part of a computer that you can touch and feel is called the hardware. जितने भी physical part होते हैं, जैसे आप कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, CPU, monitor, speaker, printer, hard disk, CD, DVD, ROM, all these are the physical part which we can टच, जिसे हम छू सकते हैं. ठीक है ना, सारे फिजिकल पार्ट जो कंप्यूटर के, जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. सी, टच एंड फील, तो उसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं. ठीक है. कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस. और जो कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस भी होता है, आउटपुट डिवाइस भी होता है, और स्टोरेज डिवाइस. ये सब हम यूज़ करते हैं बाय
टचिंग इट, जिसको हम छू के काम कर सकते हैं। द कनेक्टर सच एज अ वायर, केबल, स्विच एक्सेट्रा आर ऑल्सो इंक्लूड इन दिस कैटेगरी। और जो वायर यूज़ करते हैं CPU को, कीबोर्ड को, इनपुट को कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे से, उसे वो भी हार्डवेयर की कैटेगरी में आता है। सी दिस इज़ द हार्डवेयर पार्ट and see all the input devices, processing devices, output devices and the storage devices. All these are devices come in a category of hardware part. Okay, now come to the next part, hardware part. First part of hardware part is input device, ठीक है ना। हार्डवेयर पार्ट में हम सबसे पहला कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? इनपुट डिवाइस। These are the few devices which are used to feed the data into the computer. वो डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में डेटा फीड करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइसेस। ओके, इनपुट डिवाइसेस। एंड सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस आर, उसमें से इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, OMR, ऑप्टिकल मार्कर रिकॉग्नाइजेशन। ओके, इसका फुल फॉर्म है जॉयस्टिक, लाइट पेन, वेब कैमरा एंड द MICR मीन्स मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ओके, एंड ब्रॉकेट रीडर, बारकोड रीडर, माउस and trackball. All these are the input devices which we are going to learn. Now first input device, first is a keyboard. Look at the picture image of a keyboard. This is the image of a keyboard which is look like the typewriter. keyboard किसकी तरह हमें दिखाई देता है? बिल्कुल टाइपराइटर जैसे। एंड कीबोर्ड हैज़ मेनी बटन, और इसमें कई बटन्स होते हैं, है ना। एंड जिसे हम की बोलते हैं, जितने बटन्स होते हैं उसे हम की बोलते हैं कीबोर्ड में। एंड अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज़ ऑफन नोन एज QEARTY कीबोर्ड। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं उनकी जो अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट होती है वो QUERTY क्वाटी, ठीक है ना, इससे स्टार्ट होता है। Okay, because the first 6 keys on the top row of alphabet on the keyboard is QWERTY। जो फर्स्ट पहली रो होती है कीबोर्ड में ना, वो इसी से स्टार्ट होती है, QWERTY। ओके ना। नॉर्मली द कीबोर्ड हैज़ 104 की। एक कीबोर्ड में कितने कीज़ होते हैं? 104 कीज़ होते हैं। कीबोर्ड इज़ यूज टू एंटर द अल्फ़ाबेट, numbers and other special symbols. ओके, कीबोर्ड किसके लिए यूज़ होता है? टू एंटर द अल्फ़ाबेट, नंबर एंड अदर स्पेशल सिम्बल्स। नाउअडेज वायरलेस एंड कोडलेस कीबोर्ड आर ऑल्सो अवेलेबल। जो नॉर्मली जो कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं उसमें वायर होते हैं, लेकिन कुछ कीबोर्ड ऐसे होते हैं जिसमें वायर नहीं होते हैं, उसे वो कोडलेस होते हैं। जैसे आज आपने कई वायरलेस मोबाइल वगैरह देखा है ना, जिसमें कोई तार नहीं होता है, उसे वायरलेस बोलते हैं। तो कीबोर्ड भी अब कोडलेस या कॉर्डलेस या वायरलेस हो गए हैं। नाउ यूजिंग द कीबोर्ड शॉर्टकट की। कीबोर्ड में कई ऐसे की होते हैं जिसकी हेल्प से हम डायरेक्ट कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं, कोई भी कमांड दे सकते हैं, ठीक है। Let us learn some of the keyboard shortcut key which are the command for choosing the menu option. You can given these command using the keyboard without using the mouse, and they are called the shortcut key because they help you to work faster. ये shortcut key हम directly keyboard के help से कर सकते हैं ताकि हमारा काम easily हो जाए, faster हो जाए। Okay, and these command are the combination of alt and control key। और ये जो की हम यूज़ करते हैं वो alt और कंट्रोल की होता है, साथ में कौन से की होते हैं? प्लस साइन, ठीक है। एंड between two or more key mean that you need to press the key to another। ओके, जैसे एग्जाम्पल है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी मीन्स दैट यू नीड टू प्रेस and hold the control and then press the C।
ओके। कंट्रोल प्लस सी, फर्स्ट इज कंट्रोल प्लस एस, सेव टू द करंट फाइल एंड डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस एस हम किस लिए यूज़ करते हैं? फाइल को, करंट फाइल को और डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। सेकंड क्या है? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी क्या है? कॉपी द सिलेक्टेड आइटम, किसी भी आइटम को जो सिलेक्ट हमने किया है वो कीबोर्ड के हेल्प से उसे कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी इज़ यूज टू पेस्ट द सिलेक्टेड आइटम, सिलेक्टेड आइटम को पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस एक्स टू कट द सिलेक्टेड आइटम, सिलेक्टेड आइटम को कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स। नाउ कंट्रोल प्लस जेड, किसी भी एक्शन को अनडू करने के लिए, अनडू करने के लिए हम कंट्रोल प्लस जेड का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस एस, सिलेक्ट ऑल द आइटम्स इन द डॉक्यूमेंट और विंडो, सारे डॉक्यूमेंट जो विंडो में होते हैं, ठीक है ना। विंडो को सिलेक्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ए का यूज़ करते हैं। एल्ट प्लस टैब, स्विच बिटवीन द ओपन प्रोग्राम और द विंडो, ठीक है। एल्ट प्लस टैब एंड एल्ट प्लस F4, क्लोज द एक्टिव आइटम एंड एग्जिट फ्रॉम द एक्टिव प्रोग्राम। जो जिस भी प्रोग्राम को हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी एक्टिव आइटम हमने ओपन किया उसे क्लोज करने के लिए क्या यूज़ करना है? एल्ट प्लस 4। कंट्रोल प्लस एंड, किसी भी प्रोग्राम को एंड करना है तो मूव द बॉटम ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। कंट्रोल प्लस एंड का यूज़ किस लिए होता है? हम डॉक्यूमेंट के एंड में, ठीक है, बॉटम में पहुंच सकें, ठीक है। कंट्रोल प्लस होम टू मूव टू द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के टॉप में पहुंचने के लिए कंट्रोल प्लस होम का यूज़ किया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, दैट इज माउस। द माउस इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस विच आर यूज टू input to the system, and the mouse is mainly used to select and open the object on the computer screen। तो माउस का हम यूज़ किस लिए करते हैं? ये एक तरह का पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस होता है जिसका हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? यूज़ टू सिलेक्ट एंड ओपन द ऑब्जेक्ट, जो कंप्यूटर स्क्रीन में फाइल्स वगैरह होते हैं उसे सिलेक्ट करने के लिए और ओपन करने के लिए। एंड लुक एट द इमेज ऑफ द माउस, दिस इज़ द माउस। दिस इज़ एन इनपुट डिवाइस विथ 2 और 3 बटन्स। ये वो डिवाइस है जिसमें 2 और 3 बटन्स होते हैं। उसके ऊपर में एक लेफ़्ट बटन होते हैं, एक राइट क्लिक होता है, एक स्क्रॉल बार होता है, ठीक है। एंड इट इज़ फेमसली नोन एज द पॉइंटिंग डिवाइस। इसको ज़्यादातर हम लोग माउस या पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस इज़ ऑल्सो यूज टू ड्रॉ, पेंट एंड प्ले द गेम। और माउस किसके लिए यूज़ होता है? ड्रॉ करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए और गेम खेलने के लिए, ठीक है ना। ऑप्टिकल माउस एंड द लेज़र माउस आर मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल दैन द ट्रेडिशनल माउस। ट्रेडिशनल माउस क्या? जिसमें वायर लगा होता है, और अब क्या है, एक ऑप्टिकल माउस है और एक लेज़र माउस है। ये दो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। माउस कंसिस्ट ऑफ, माउस में क्या क्या होते हैं? लेफ़्ट बटन होता है, ये लेफ़्ट बटन है, ठीक है, ये लेफ़्ट बटन माउस है, ये राइट क्लिक माउस है, एंड जो स्क्रॉल है उसे स्क्रॉल व्हील कहते हैं, ठीक है ना। ये 3 पार्ट होते हैं माउस के। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नाउ सेकंड टॉपिक इज स्कैनर। Scanner is an input device that scan the documents such as photograph, page and text। जो भी फोटोग्राफ स्कैन करने होते हैं या पेज, टेक्स्ट को, तो वो हम स्कैनर के हेल्प से करते हैं ना। स्कैनर इज एन आई ऑफ अ कंप्यूटर। स्कैनर कंप्यूटर की आँख के रूप में देखा जाता है। आइज एक्ट एज द आई, ओके। एंड द स्कैन्ड इमेज कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर, ठीक है। जो भी स्कैनर के हेल्प से हम स्कैन करेंगे वो हमें मॉनिटर में दिखाई देता है, ठीक है। स्कैनर वर्क बाय पासिंग द लाइट ओवर द पेज टू द स्कैनर। स्कैनर मतलब जो वर्क कैसे पास होता है स्कैनर के हेल्प से? जो उसमें जो भी पेज हम उसमें इंपुट करते हैं तो उसमें पास करता है लाइट, जिससे हमें मॉनिटर में वो अच्छे से दिखाई देता है। The scanner converted the paper image into a digital and electronic image, ठीक है। जो भी हमें स्कैनर में पेपर से कन्वर्ट करते हैं वो
किस में कन्वर्ट हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है वो किस में? ये डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक इमेज में. ओके. It contain a camera which is made up of tiny cells, and each cell called the charge coupled device. Okay. Now see, are the some of the scanners. This is the flatbed scanner, sheet fed scanner, and handheld scanner. These are the three types of scanners. Okay, three types of scanners you can see on your screen.